You know, whenever we talk about Rajasthan, or when we discuss about Rajasthan, the first thing which comes in people's mind is people images of the turban people and a patriarchal society, which is a quite which is a simple phenomena in Rajasthan. So Rajasthan has been known by the image of a turban man followed by a child and woman. From there to leading the state, what has been the biggest challenge? How is the experience of a leading patriarchal Rajasthan been? And you were the first women chief minister of Rajasthan. How was your experience? See, breaking this stereotype, Harinderji, both in Rajasthan and also in the eyes of the world, was probably one of my biggest challenges. Becoming the first woman chief minister of Rajasthan meant a lot of work because this state is like any other. I think women have to work a little bit harder than men to prove themselves in any case. So we needed to do that. But I did understand one thing, that for us to be able to make this a success, it was important to take that woman who was standing behind that man and make her walk shoulders to shoulder with that man, because only then would this thing work. So we needed to start to empower women and to make them feel that they had solid grounds on which to stand. So we tackled this headfirst and came up with programs like that Bhamasha program, which I'm sure you have heard about. And we empowered women, made them heads of the family, and allowed them to hold the banking card through which other family members could access their bank accounts. This was a first for Rajasthan, and I think that it did help women to start to understand that they could run their own small businesses and that they could be powerful, they could be, stand tall in their own homes. But alongside that, it was very important to do other programs, particularly those to combat sex ratios. As you know, women's sex ratios, male sex ratios, there's always a lot of difference. Another one, which was very, very important, was to ease the financial burden of raising and educating a girl child. That is really very, very important. Um, and then I made a program where I actually adopted young girls into a program which linked directly up with me, so that I could help them with their education, basically point out to people in Rajasthan that the girls are a very important of our family. And if you educate that girl, she will not only stand on her own feet and help her family, but she will go on to help her married family in time to come. And together, these women will change the face of जिसको कहते हैं समाज. समाज को आगे ले जाने के लिए उनकी महिलाओं को ये बहुत ज़रूरी है कि उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है. तो हम लोगों ने वहाँ उनको मजबूत करने की कोशिश की. साथ-साथ मैंने ये भी कहा कि we must make specific provisions to support startups. Now, IT was a big thing all around the world. So it was very important that women be also given a foothold in that IT sector. And so what we did do was provided help, in fact, to the women who were interested in putting up the startups. Then there was that 50% reservation for women in the Panchayati Raj institutions. And we understood that while we had to stay with some of the cultural and social norms, we could strengthen women power even side by side to this. And I think that that made a difference because women started to walk tall, stood tall, and actually were able to participate in the economic affairs of the state. I think it was a great challenge for you. उन दिनों में जब हम पितृसत्तात्मक परिवारों की बात करें तो इस टैबू को तोड़ना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे याद है कि जब लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जब इलेक्शन में खड़ी थी इस जमाने में, तो उनका विरोध उन्हीं के समाज ने किया कि नहीं, हम आपको चुनाव में खड़े होकर हम जिताना नहीं चाहते. तो मैंने जब लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का जब वो इंटरव्यू देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हम उस उस समाज के उस किनारे में, मतलब 1950-60 से 2020 में जो हमने यात्रा की, ये बहुत बड़ी यात्रा है. और इट वाज ए ग्रेट
अपॉर्चुनिटी कि आपने भी उस टैबू को कहीं ना कहीं किसी न किसी नजरिए से उसको तोड़ा है. हमारे साथ हैं रईस भारती जी. ही इज नॉट a politician, he is not even interested in politics, but his Dhoot band is very popular and he is much into art and culture, and his band has performed more than 110 countries. He has got one question from France. Rईस भारती ji, please. मैडम जी, मैडम जी, अभी हम अभी हम धोत ग्रुप धोत अभी ग्रुप हम अभी हम फ्रांस के फ्रांस के अंदर अंदर आज शाम को कॉन्सर्ट है धोत ग्रुप धोत ग्रुप का का पेरिस पेरिस में. तो आवाज हरिंदर जी, द वॉइस इज echoing. Yeah. आप उनका क्वेश्चन, आवाज एको कर रही है. जी, आपको आ रही है आवाज? हाँ, नाउ थोड़ा बेटर है, थोड़ा अब. हाँ जी जी, रेस्पेक्टेड मैडम जी, नमस्कार. हम अभी धोत ग्रुप जो अपने राजस्थान का है, हम अभी फ्रांस के अंदर हैं और आज हमारा कॉन्सर्ट है पेरिस में. तो राजस्थान एसोसिएशन ने अवसर दिया आपसे मुलाकात करने का, और आपसे क्योंकि हम बचपन से आपको देखते आए हैं और जो आप यू आर इन्वॉल्व इन प्रिजर्विंग आर्ट एंड कल्चर and supporting Rajasthan heritage. So I would like to ask you, what is your philosophy to preserve and support Indian Rajasthani art, culture and music heritage in Rajasthan? रईस साहब, सबसे पहले आपको ऐसे मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है. मुझे इसकी भी खुशी है कि इतने दूर हमारी आवाज को पहुंचाने का काम आप इतने कलाकारी के साथ कर रहे हो. तो मैं आपको आज प्रणाम करना चाहूंगी सबसे पहले. और आपका जो प्रश्न है, मैं मानती हूँ कि वो प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसका मैं हमेशा चाहती हूँ कि जवाब देने की बात करूँ, क्योंकि जिस बात को आप कह रहे हो, that is so important because we are trying very very hard to put tourism, art, culture at the center of governance. क्या है कि लोग कोई समझता नहीं है, स्पेशली राजस्थान के अंदर, कि हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड हेरिटेज है, इतना हमारा कल्चरल वेल्थ है कि हम उसको एक तरफ करके अगर ये सोचें कि हम राजस्थान के अंदर ऐसी गवर्नेंस कर दें जिसमें इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हम दे सकें, हाँ हो सकता है हम करें, परंतु विदाउट टूरिज्म हम नहीं कर सकते. इसलिए राजस्थान के अंदर हमने सबसे पहले फोकल पॉइंट बनाया टूरिज्म को, और हमने ये कहा कि भाई इसको एक सोशल, इसको एक इकोनॉमिक ड्राइवर बनाने के लिए हमको पूरा ध्यान देने की जरूरत है. हमारे सब डिपार्टमेंट्स को हमने इसके अंदर फीड किया, बीच में उनको रख के और फीड किया. कैसे आप पूछोगे? हमने सबसे पहले एजुकेशन के अंदर भी आपके आर्ट, कल्चर, म्यूजियोलॉजी, उसके कोर्सेज शुरू कर दिए. ये मैंने म्यूजियम्स के बारे में जानकारी रखना, ये भी हम लोगों ने सब लोगों को पढ़ाने का काम किया. एजुकेशन के अंदर भी बच्चों को उनके हेरिटेज के बारे में, मैंने उनको प्राइड होना चाहिए कि हमारा हेरिटेज कितना सुंदर और कितना वेरिड है, उसके ऊपर. तो एजुकेशन में, फिर हेल्थ में, टूरिज्म का हमने ये कहा कि हमारा हेल्थ इतना सुंदर बन जाए, उतना अच्छा और सुदृढ़ बन जाए कि उसके अंदर एक हेल्थ टूरिज्म के नाते योगा सिखाते हुए, कैंसर के लिए, ब्रेन सर्जरीज के लिए, स्पेशली जो पैराप्लीजिक्स जैसे लोग हैं उनको मदद करने के लिए हम सॉलिड माने वो अपना कार्यक्रम बना दें, वो भी टूरिज्म के साथ फिट करता है. तो लोग, बाहर के लोग आते हैं हमारे यहाँ ट्रीटमेंट करने के लिए. आज यूपी के लोग आते हैं, आज हरियाणा के लोग आते हैं, आज ये सब लोग हमारे पास आ रहे हैं. तो मैं ये कह रही हूँ कि बाहर के लोग क्यों नहीं, क्योंकि प्राइसेस एंड स्पेशलिस्ट जी आपके फ्रांस में या यूके में या अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क है. बिल्कुल. वैसे ही स्पेशलिस्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग स्पेशलिस्ट हमारे पास हैं, परंतु प्राइसेस कितना डिफरेंस है वो आपको मालूम है. और केयर में मैं समझती हूँ कि बहुत हम आगे हैं, इसलिए हेल्थ को भी उसमें जोड़ा. फिर हमने कहा कि भैया इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे टूरिज्म में हमारा रिलीजियस टूरिज्म एक बहुत फेमस है. लोग गुजरात से आते हैं, लोग बंगाल से आते हैं, लोग मुंबई से आते हैं, लोग डायस्पोरा के बाहर से आते हैं. ऐसे लोगों को वहां पहुंचाने के लिए नक्शे के ऊपर हम ये देखें कि हमारे रोड्स जो भी वहां से निकल रहे हैं वो उस एरिया ऑफ टूरिज्म को छोटे टुकड़े से भले ही हो जोड़ दें, ताकि आदमी वहां जा सके. आई मीन इट शुड बी अवेलेबल टू देम.
जी So मैडम। infrastructure, all of it, whether it's communication, Wi-Fi, whether it's air services, to which we were working, and we just started small private air services to bring people in here. इस तरीके से bringing roads, that was a very important part for us. उसके जी साथ मैडम। साथ folk leaders और art and music and books, मैंने इनको अपने स्टेट के अंदर, अपने स्टेट के एम्बियंस को बढ़ाने के लिए हमने जी कई राजस्थान हेरिटेज वीक, जिसमें खादी की बात करना, उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल में बाहर के लोग भी आ रहे हैं, अपना म्यूजिक भी उसमें जा रहा है, तो लोगों को जी मैम। एक दूसरे का म्यूजिक समझने का और सुनने का एक मौका। उसके बाद पुष्कर फेस्टिवल, जिसमें लोग आते हैं, पुष्कर के दर्शन मंदिर के भी करते हैं, पुष्कर का एम्बियंस देखते हैं और पुष्कर के अंदर पूजा अर्चना करके फिर वहां से जाते हैं। हमारा फर्स्ट कंटेम्प्रेरी पब्लिक स्कल्पचर, जब मैंने उसको पहली दफा किया तो मैं सोच रही थी कि तो हो ही नहीं सकता, परंतु हम जी लोगों ने एक स्कल्पचर पार्क, माधवेंद्र पैलेस, नाहरगढ़ फोर्ट, आपने देखा होगा जी बिल्कुल नाहरगढ़ बिल्कुल। फोर्ट, उसका और उसके म्यूजियम के अंदर हमने स्कल्पचर पार्क बनाया और जी इतना मैडम। अच्छा बना कि बाहर के सऊदी के लोग, बाहर के लोग प्राइवेट प्लेन्स में आके इसको देखे। क्या मैंने बात है। इसके साथ साथ हमने ग्लोबल एजुकेशन मीट, तो लोग आए, जी ग्लोबल एग्रीटेक मीट, तो लोग बाहर से आए, रिसर्जेंट राजस्थान, जिसमें इंडस्ट्री बाहर से आई। कहने का जी मतलब सिर्फ उतना ही है कि टूरिज्म खाली टूरिज्म नहीं है, हमने ये कहा कि टूरिज्म सेंट्रल फोकस राजस्थान का है, इसलिए क्योंकि राजस्थान इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स टूरिज्म। जब आपसे या अंग्रेज से या किसी फ्रेंच से या किसी अमेरिकन से हम लोग पूछते हैं कि आपका क्या इमेज है जी राजस्थान का टूरिज्म के बारे में, तो वो सबसे पहले कहते हैं अरे फोर्ट्स, पैलेसेस, यही सबसे पहले उनके दिमाग में आती है। परंतु उसके साथ साथ हमारा लैंडस्केप, हमारा आर्ट, हमारा टेक्सटाइल, अब हमारे आर्ट और टेक्सटाइल्स के लिए हमने बाहर से एक्सपर्ट्स लाए और जो एक्सपर्ट्स वहां आए, आज कोटा डोरिया फेमस हो गया है। अब मैंने बाड़मेर की टेक्सटाइल, अब जो बाड़मेर की टेक्सटाइल लोग कभी सोचा भी नहीं करते थे उसकी तरफ, आज वो फेमस हो गए हैं। मैंने इस तरीके के क्राफ्ट्स को हमने बढ़ाने का काम किया और लोगों को सिखाया कि क्राफ्ट्स भी एक बहुत अच्छी चीज है। फिर टाइगर देखने सब आदमी आता है, तो राजस्थान के टाइगर, राजस्थान के पार्क्स, उनको भी इसके साथ जोड़ने का काम किया। मैंने दिस बिकेम अ होलिस्टिक program. Tourism was the center of it all. And if you look at it, आज अभी मैं देख रही हूँ कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ हम लोगों ने मिलके गवर्नमेंट म्यूजियम्स 2018 के अंदर जो उनको चालू किया, उसमें क्यूरेटर्स और लोग जो नए एक्सपीरियंस प्रेजेंट करने वाले आजकल दुनिया में कितने सारे हैं, उन लोगों ने आके वो काम बताया। तो आपने जोधपुर का म्यूजियम देखा होगा, भरतपुर का म्यूजियम देखा होगा, 18 ऐसे म्यूजियम हमारे हैं जो नाउ आर ऑलमोस्ट वर्ल्ड क्लास, जिसके बारे में, और उनके पास इतनी तो संपदा है, उसको सबको टैग करना, उसको सबको लिस्टिंग वगैरह करना, वो सब काम राजस्थान का हम लोगों ने उस समय किया है, ताकि ये जो हमारी धरोहर है उसको हम बचा के रख सके। तो आज मैं देख रही हूँ कि इतने सारे काम हमारे हो चुके हैं, अगर इनको हम एक किस्म से सुरक्षित ही रखें। अब आप आ जाइए जयपुर का ये जवाहर कला केंद्र, आपने तो देखा ही होगा सब लोगों ने, क्या स्थिति थी। आज आप देखेंगे तो इट वाज अ रिवाइव्ड, थ्रॉबिंग, वाइटल स्पेस। माने हमारे म्यूजिक का, हमारे आर्ट का कितने सारे काम वहां हो चुके हैं, अब वो भी वैसे ही कलैप्स हो गया है। बीकानेर हाउस तो एक रन डाउन बिल्डिंग हुआ करती थी, जो भी कभी बीकानेर हाउस में गया उसको ये याद होगा। आज बीकानेर हाउस इज अ थ्राइविंग कल्चरल हब। जो भी दिल्ली का आदमी है, अगर वो बीकानेर हाउस में नहीं जाता है तो फिर वो कहीं नहीं गया। राजस्थान ने अपना पैर जोरदार तरीके से वहां जमा दिया है। दिल्ली के सोशल हब और सोशल कॉन्शियसनेस में हम लोग बीकानेर हाउस के थ्रू हैं। सब काम होते हैं वहां, म्यूजिक भी होता है, एग्जीबिशंस भी होते हैं, सब कुछ होता है। फिर जब आप लोग आते हो तो हमने ये कहा कि भैया स्टेशंस के अंदर हम हमारे स्टेशंस को सुंदर बना दें, ताकि जो बाहर का आदमी आएगा तो वो ये सोचेगा कि भाई हम कहाँ पहुंच गए। तो अगर आप देखेंगे जोधपुर का स्टेशन पूरे फड़ का है, आपको मालूम है ना फड़,
जो अपने पहले बनाया करते थे और फड़ के सहारे कहानियां लोग सुनाया करते थे अपने पुराने जमाने में। तो पूरा स्टेशन फड़ के हिसाब से पेंट हुआ है। इसी तरीके से हम लोगों ने बीकानेर के अंदर बादल महल, इसी तरीके से जयपुर के अंदर जोगियों का आर्ट, और उदयपुर में हमने मेवाड़ स्कूल को इस्तेमाल करते हुए नाथद्वारा के भगवान और इन सब लोगों को जोड़ते हुए हम लोगों ने वहाँ इतना बड़ा काम कर दिया है। फिर उसके साथ साथ हमने कहा कि भाई सब मॉन्यूमेंट्स को रिस्टोर करने का काम हम लोग करें, और उसके साथ हमने अपनी शहरों की सड़कों को साफ करने की कोशिश की। एंड देन वी स्टार्टेड वर्क इन जयपुर ऑन आवर चॉपर्स, ऑन आवर लाइटिंग। काश उसको पूरा कर सकते थे। तो मैं समझती हूँ कि लोग खाली इन चीजों को देखने के लिए आते, अब वो आधा अधूरा पड़ा हुआ है अनफॉर्चुनेटली। पर मुझे खुशी इस बात की है कि ये सब काम की वजह से जयपुर वर्ल्ड सिटी वाज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को हेरिटेज साइट। इतना बड़ा काम हो गया है। तो मैं, आप जो कह रहे हो ना, इसके बिना, हमारा हेरिटेज, हमारे कल्चर के बिना हम कुछ नहीं है। उस चीज के साथ अगर हम सब चीज को जोड़ सकते हैं तो मैं समझती हूँ कि आज मांगन्यास, लांगस, इन सब लोगों के लिए लोग दौड़ दौड़ के आते हैं। और कैसे आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसको अब फेमस बनाने का काम कर दिया गया है और उनको हम अपना हेरिटेज मानते हैं। इसी तरीके से आप देख लीजिए, मैं ये चाह रही हूँ कि आपके शेखावाटी की हवेली, कितने सारे सेठ लोग उनको छोड़ के चले गए हैं, कभी कभी आते हैं, साल में एक दफा उसको देख के जाते हैं। मैंने कोशिश की थी कि भाई सब लोगों से, और ये आप लोग भी कर सकते हो, कि मैं ढूंढ रही थी कि भाई एक कंसोर्शियम जैसे बन जाए, 4-10 हवेलीज उन कंसोर्शियम में आ जाए, एक रास्ते के ऊपर ही इधर और उधर अपन अपन ले सकें, उनको ठीक कर सकें। तो एक एग्जाम्पल बना के छोड़ दें कि हमारी ये सुंदर हवेलियों को हमने अपडेट करके, उनको सुंदर बना के, उसमें शॉपिंग एक्सपीरियंस, उसमें हवेली को देखने का एक्सपीरियंस, उसमें एक टूरिज्म एक्सपीरियंस, एक हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस सब आपको देखने को मिल जाएगा। Craft is basically not just an expression of culture, but it is also a source of livelihood to so many people. ये जो एम्प्लॉयमेंट का अपन चिल्लाते रहते हैं ना, इतना आसान है टूरिज्म के द्वारा। हम इंडस्ट्री की बात भी कर लेंगे, सब चीज इसके साथ जुड़ जा रही है। Tourism gives you a huge outlet, and so we brought on board all kinds of experts, people like B.B. Russell, people like Prasad Bidappa, and many crafts of Kota, Jaisalmer, Bardmer, बीकानेर, जोधपुर, ये सब चीजों को हम लोगों ने एक दफा बाहर निकलने का मौका दिया। पहली दफा जयपुर, फुल जयपुर को अपन ने एक आर्ट म्यूजियम बनाया 1 महीने के लिए। पूरे जोगी आर्ट का हम लोगों ने बड़े बड़े पूरे जयपुर के अंदर उनके वो पेंटिंग लगा दिए, और it was dedicated only to the yogis. And we even have got jails के अंदर उनके shops are working. So that also becomes a tourism interest for tourism. People have gone there to find. I think we are duty bound to preserve our culture. And it is very, very important that every government recognizes this, because more than any other state, we have this. And we must put that right in the center and allow everything to build around it. It was my dream. It has always been my dream. And I'm sure that if we are able to follow this, we will see the difference. And all the Rajasthan के जो लोग हैं, उनके अंदर एक sense of pride develop हो जाएगी. क्योंकि that gets attached to their tourism, to their culture, to their art, to their craft. They go out as citizens of Rajasthan full of pride for what they have and what they own. थैंक यू मैडम। आई थिंक जो इतनी सारी चीजें लिखी, ये मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले 10-20 सालों में जो लोग इंडिया गए हैं, जो लोग राजस्थान गए हैं, उन्होंने इन चीजों को कहीं ना कहीं महसूस किया होगा अपने दैनिक जीवन में, कहीं ना कहीं। जैसे जोधपुर के मेहरानगढ़ गया, या फिर जोधपुर में म्यूजियम में जो काम हुआ आसपास, मैंने उसको विटनेस किया, या फिर ओंकार सिंह जी लखावत के द्वारा जितने पैनोरमा बने अलग अलग, वो शायद एक ऐसा अमेजिंग काम है जिन्होंने आम जनता के लोगों को छुआ है। वैसे मैं एक दूसरे विषय पे है, कहते हैं कि आपको, सॉरी मैं आपको यहाँ कर रही हूँ, पर आप देखें मैंने करीबन 1000 करोड़ अलग से अपने टेम्पल्स के लिए दिया। अगर आप वहां से चले जाओ गोगा मेडी, नॉट वेरी फार फ्रॉम, और आप उसको देख लो, कितना 23 करोड़ लग के कितना सुंदर मंदिर बन रहा है। और अगर
सरकार अपनी आ जाती तो मैं समझती हूँ कि अगर 10 करोड़ मोर आई वुड हैव पुट। यहाँ 5 स्टेट्स आते हैं और वो जब देख के जाते हैं तो वो राजस्थान की वाहवाही करके जाते हैं, ईश्वर के दर्शन करके जाते हैं, खुश होके जाते हैं। ऐसे आपके जयपुर के अंदर है, यहाँ है, मैंने पूरे राजस्थान का ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसके अंदर हमने एक ना एक कोई पैनोरमा करके दिया। क्योंकि हम मानते हैं, और ये अडवाणी जी ने मेरे को कहा था जब मैं पहले सीएम बनी, कि भैया तुम एक काम ऐसा करना कि राजस्थान के लोगों को उनके लोक देवता और उनके जो हीरोज हैं उनके बारे में जानकारी रहे। क्योंकि क्या है, वो पीढ़ी गुजर जाती है, लोग भूल जाते हैं, वो इतिहास की किताब में बंद हो जाते हैं। परंतु अगर आप लोग इस तरीके से बनाओगे तो क्या होगा कि लोग आएंगे, अपने बच्चों को लेके आएंगे, घुमाएंगे उनको, उनके अंदर कहानियां लिखी गई हैं, उनके पैनोरामा के अंदर पिक्चर्स हैं, फोटोज हैं, फिल्म है। इसको देखकर वो बच्चे के दिल में वो चीज जाग जाएगी। राणा प्रताप के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में सीख के जाता है वो, तो कभी भूल नहीं सकता। इसीलिए मैं समझती हूँ कि आने वाली पीढ़ी के लिए, अगेन दिस इज टूरिज्म, बट आने वाली पीढ़ी के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, एक मिनट के लिए सोचो। क्योंकि भरतपुर वाले को उसकी हिस्ट्री, परंतु भरतपुर वाले को जोधपुर की भी हिस्ट्री, अगर वो जोधपुर जाता है। It is such a huge thing and it is so important for everybody, particularly those in Rajasthan, to understand and to live with. That it is very, very, and that is one of the things that we did, and more than 1,000 crores have been spent on that, and I believe that it has been spent well. मुझे अभी इसी लाइव में प्रत्युष जी जोशी जो जोधपुर से हैं, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि वहां की बावड़ियों के लिए क्या सुंदर काम किए गए और किस तरह से किए गए। और मुझे लगता है कि जल यानी कि पानी राजस्थान के जीवन के सेंटर में रहा है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी लग्जरी है राजस्थान के लिए। तो वो उनका कमेंट बहुत सही था। अब मैं दूसरे विषय पर आता हूं कि जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं तो हम एक दूसरे आदमी की जिंदगी को जी लेते हैं अपने भीतर। तो हम जितनी किताबें पढ़ते हैं हम उतनी अलग अलग जिंदगियां अपने भीतर जीते हैं। और बहुत सारे राजनेता रहे हैं जो पढ़ने और लिखने के बहुत शौकीन रहे हैं, और मैंने सुना है कि आप किताबें पढ़ने की बहुत शौकीन रही हैं। इन दिनों आप कौन सी किताबें पढ़ रही हैं, आपकी कौन सी किताबें फेवरेट हैं, और उनके बारे में आप कुछ बताइए। अब आप लोग फिर मेरे से वो कहोगे कि भैया ये क्या, आप लोग क्या पढ़ रही हो, पर मैं सोचती हूँ कि ये बहुत जरूरी है कि स्पेशली जो लोग अपनों से, जैसे हम लोगों से डिसएग्री करते हैं, उनके बारे में पढ़ना, उनकी हिस्ट्री पढ़ना और जानकारी लेना। यहाँ एकेडमिक्स भी बैठे हुए हैं, तो मैं समझती हूँ कि बहुत जरूरी है। क्योंकि उनकी साइकोलॉजी उनकी किताबों में, उनके रहन सहन में, उनके सोच में निकल के आती है, और कोई भी गवर्नमेंट को उस दूसरी गवर्नमेंट से डील करने का एक मौका देती है। आज मेरे बड़े डाइवर्जेंट रीडिंग मटेरियल है, क्योंकि मैं एक दो किताबें एक साथ ही पढ़ती हूँ, कभी कभी होता है। तो एक तो मैं हिस्ट्री में थी, शिवाजी की जो हिस्ट्री लिखी है रंजीत देसाई, तो कौन है? वो अपने आप में कुछ, आजकल पानीपत बहुत फोकस में है, तो पानीपत की किताब जो विश्वास पाटिल ने लिखी है, और साथ में उसके नेचुरली शुरू तो वहीं से होता है, क्योंकि मराठों की हिस्ट्री वहीं शुरू होती है शिवाजी के साथ। तो शिवाजी के रंजीत देसाई की शिवाजी, इन दोनों को पढ़ के ये नेशनलिज्म क्या चीज होती है वो समझने की कोशिश उन किताबों के द्वारा मैंने हमको सीखने का मौका मिलता है। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं भी चाइना के ऊपर भी 2-3 किताबें पढ़ रही हूँ साथ में। एक युंग चांग है जिसने जॉन हॉलिडे के साथ, एंड दीज आर बेस्ट सेलर्स टुडे, दीज आर, there's a it's called Empress Dowager Cixi. So these are three which follow one from the other. Ancient period of China, Cixi, followed by Mao the Unknown Story. क्या था माओ, मैंने आप पढ़ के देखोगे तो फिर ध्यान में आ जाएगी कि कहाँ से आ रहे हैं, समझ में आ जाएगी कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। और उसके बाद साथ साथ एक बिग सिस्टर, लिटिल सिस्टर, रेड सिस्टर, ये 3 बहनों के बारे में बता रहे हैं, जो 3 बहनों ने 3 बड़े लोगों के साथ शादी करके चाइना की हिस्ट्री के ऊपर कैसा इम्पैक्ट किया। तो इसमें चांग काय शेक, 2 बहनों ने, एक ने शादी की, दूसरे ने उसकी एडवाइजर बन के उसने क्या किया, 2, और तीसरी जिसने सुन यात सेन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ चाइना, पॉलिटिकल चाइना, उनके साथ शादी करके उनका क्या हुआ। ये वही चांग शेक है जो जिसने जाके ताइवान को किया, आपको मालूम है, नेक्स्ट वेंट टू ताइवान। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जब आप इनका माइंड पढ़ते हो, जब आप देखते हो कि ये कहाँ से आ रहे हैं, क्या सोचते हैं और कहाँ जा रहे हैं, then it equips you
to learn about the kind of people these are and how tomorrow, what kind of mind, how they think, and what is it that we have to be able to deal with. So we are also prepared. It's very important. So one side is nationalism of our own. Another side is what this presents. The Chinese also in these three books are presenting a nationalism of their own sort. But what is in their minds and how do we have to deal with this at a later stage is also coming out in these books. So it's very interesting. I'm just reading with these three of them on this side. I finished four of them, and I hope to be able to finish the fifth soon. Let's see. So, मुझे interesting, very interesting. In fact, some of you should read them. ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब हम किसी भी देश या किसी भी इंसान के भीतर जानना चाहते हैं तो हम ये उसके द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो ऑपरेट कैसे करता है, उसकी Yes. सोच कैसी है और आगे 100 सालों में वो क्या कदम उठा सकता है, अगले के दिमाग में झांकने का नजरिया ये किताबें देती है हमें। हरेंद्र जी, आपको मैं कह दूं कि ये लोग जिन्होंने कहा ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये ऐसी स्टेटमेंट नहीं किया किसी ने सोच विचार करके इसके बारे में तो इसका स्टेप क्या आगे चल हो सकता है. It's very interesting, and while you can study it, it gives you a way out, gives you a thought. think कर सकते हो आप कि भाई आगे चल के ये क्या कहाँ जाएगा, and then इसको आप वर्ल्ड स्टेज पे रख दो कि आज क्या चल रहा है, तो फिर everything becomes even clearer. मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी कि राजनीति में जो लोग हैं या जो इस क्षेत्र में है उनके लिए भी साल में 1 या 2 महीने स्टूडेंट्स की तरह एक रीडिंग महीना घोषित होना चाहिए जहां पर वो जाकर उन सारी चीजों को स्टडी करे जिस पर वो आगे भविष्य में फोकस करे. अगर ये कर लें तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही ना हो. हो सकता है भविष्य में, कौन जानता है कि ऐसी चीजें संभव है. ये तो रोज कोई भी पॉलिटिकल आदमी है उसको तो शाम को जब ये सब कुछ काम खत्म कर लेता है तो 1 घंटा 2 घंटा इतना एक किताब पढ़ने में प्रॉब्लम क्या है, पढ़ लेना चाहिए ताकि उसका फायदा उसको मिले. लेकिन हम क्या कि हो सकता है कि राजनेता जब अपनी सत्ता के आसपास रहता है या लोगों से जब घिरे रहते हैं तो लोगों की जो उनकी पूछ है या जिसे कह सकते हैं नार्सिसिज्म या आत्ममुग्धता का भाव है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि नए लोगों को जब आत्ममुग्धता का भाव आता है तो उनको बड़ा मुश्किल होता है कि अपना समय निकालने में, वो खुद को निहारने में और खुद के बारे में सोचने में ही समय व्यस्त करते होंगे. पर ये पता है कि ये तो हो सकता है उन लोगों के लिए जो काम नहीं कर रहे हैं. हाँ. पर अगर वो काम कर रहे हो तो सुबह से लेके शाम तक टाइम काफी नहीं होता. बिल्कुल. और मैं तो ये करा करती थी कि रात को कितने बजे भी हम लोग वापस आए, चाहे वो 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे तक आप सोने जाओ, तो मेरा तो ये कस्टम है कि 4 पेज पढ़े बिना नहीं सोना. तो कुछ तो मैंने समझ के या पेट में जाएगा, कुछ तो समझ के जाओगे आप सोने. बहुत अच्छा. You will sleep on something new, some new knowledge, even if it's 3 or 4 pages. तो ये भी बहुत अच्छी है कि कितने भी मशरूफ हों, कितने व्यस्त हों, कम से कम अपनी व्यस्त जिंदगी में से पढ़ने का समय जरूर निकालें. ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है सबके लिए. मेरे साथ हैं अभी एमरशम से अनुभव जी चौधरी. मैं उनसे गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा, अनुभव जी चौधरी अपना प्रश्न पूछें. नमस्ते मैडम. नमस्कार अनुभव जी. मेरा क्वेश्चन है कि आपकी जब गवर्नमेंट थी काफी सारे इनोवेटिव आपने प्रोजेक्ट्स लाए और काफी सारे काम करे, जैसे भामाशाह योजना है, ग्रामीण युवा स्वास्थ्य योजना है, अन्नपूर्णा रसोई है, काफी सारे ऐसे लेबर रिफॉर्म है, एग्रीकल्चर, काफी सारे प्रोजेक्ट्स थे. तो वो सब जो इतने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स है वो अब क्या उनकी स्थिति, अब क्या उनका अभी है कि आगे जो दूसरी गवर्नमेंट आई है वो उसको आगे लेके जा रही है कि क्या है उनकी स्टेटस? अनुभव जी मेरे को दुखी मत करो. तो क्या है कि क्या बताएं आपको, हम लोगों ने जैसे ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना जो चालू की थी, आपको याद होगा, ये इसलिए की थी मैंने क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत ज्यादा मुसीबत है और पैसे तो कम है ही, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको नहीं दे सकती और लोन्स भी आप कितने भी ले लो, ये सब तो
पानी में नहीं जा सकते, दूसरे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर उनको डालने की जरूरत है। तो मैंने इन लोगों को सबको कहा कि कुछ लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म प्रोजेक्ट्स, सेंट्रल फंडिंग और बैंक फंडिंग या इंटरनेशनल फंडिंग से अपन कर सकते हैं, परंतु कुछ मैंने ये कहा कि हम लोगों को भी करना पड़ेगा। सो ये प्रोग्राम हम लोगों ने डिजाइन किया कि ऑल पॉलिटिशियंस ऑफ एवरी पार्टी, all officers, whether they are police or whether they are bureaucrats in the secretariat, all civil society, संत महात्मा, माने जो आपके इन सब चीजों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इन सबको, एनजीओज, इन सबको बुला के इन सबसे हमने बात की कि भैया जितना आप दे सकते हो, या आप अपने लेबर से, अपने मशीन से, या अपने पैसे से, जो आप कर सकते हो वो आप करिए। और हमने एक टीम बिठाई जो इंजीनियर्स थे, वाटर इंजीनियर्स, क्योंकि हमने कहा कहीं भी खोद दो, जैसे पहले खोदा करते थे, ऐसे खोदने से मतलब नहीं होता, खोदो तो सही जगह पे खोदो ताकि उसका फायदा वहां की जनता को मिले। तो हम लोगों ने करीबन 4 लाख ऐसे प्रोजेक्ट्स पूरे प्रदेश के अंदर बनाए, जिसका माने कॉन्टूरिंग, बंडिंग, वो सब कुछ, जमीन उसका सब कुछ देखने के बाद, और फिर हमने अपने एक्स्ट्रा पैसे जो भी हैं वो सब दूर पूरे राजस्थान के अंदर के जो डिपार्टमेंट्स के अंदर से हमने इकट्ठा किए, और फिर सब लोगों ने जिनने अपने अपने क्षेत्र के अंदर पैसे देने का काम किया, उन सब के पैसों के साथ हम लोगों ने 2 साल 3 साल के अंदर over 1.5 lakh, maybe almost 2 lakhs of these programs हम लोगों ने तैयार कर दिए। और हमने उसको क्या किया, पूरा साल काम करते थे और मॉनसून के टाइम में उसको छोड़ देते थे, मॉनसून के अंदर वो भर जाते थे। तो इट वाज ए what do you call it, general effort by everybody, not just by government or just by an industry or nothing, everybody was involved, and around those places जहां हमने पानी भरा वहां हमने प्लांटेशन ऑफ ट्रीज भी किए। तो आप देख सकते हैं कि उसका कितना अच्छा फायदा हुआ। 1 साल 1.5 साल के अंदर हमारे more than 50%, हम जो ट्रॉलीज भेजा करते थे जिसके अंदर वो पानी भर भर के, टैंकर्स, आपको मालूम है कि गर्मी के टाइम में बहुत अनाप शनाप पैसे पे गरीब लोगों के पास बेचा करते हैं। तो हमने कहा कि भाई अगर हमारा ये प्रोग्राम सही हो जाता है तो ये टैंकर ट्रिप्स हमको करने की जरूरत ही नहीं होगी, पैसा बचा लेंगे। तो यू विल बी astonished to hear that almost 50% of those tanker trips we didn't have to do। जो हमारे कुएं थे उनमें पानी भर गया, जो हमारे हैंडपंप सूखे थे वो हैंडपंप के अंदर पानी आ गया, माने इट वाज मिराक्युलस। और मैं ये मानती हूँ कि अगर उसको 10 साल तक हमने लगातार चलाया होता तो राजस्थान की जनता ही अपने खुद के हुनर और हाथों से ऐसी परिस्थिति बना देती कि लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स बाद में हमारे साथ डवटेल हो जाते, परंतु आज की प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट कर देते। अब उस चीज को भी ये लोग भूल गए हैं, कोई भी छोड़ दिया है क्या। मैंने इतना अच्छा कार्यक्रम था कंजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ वाटर की, नाइजीरिया और बाहर बाहर की जो स्टेट्स हैं उन्होंने आके घूम के उसके बारे में सीख के हमारे कुछ एक्सपर्ट्स को अपने यहाँ ले जाके काम कराने का काम किया। तो इट इज ओनली सैड, और मैं समझती हूँ कि किसी भी सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे उस सरकार ने किया तो हम आज इसको बंद कर देंगे। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर पिछली सरकार ने अच्छा काम किया है तो उसको अपने हाथों में लेके उसको आगे ले जाके उसमें पैसे लगाकर और सक्सेसफुल बनाने का काम दूसरी सरकार को करना चाहिए। इसमें कोई ईगो की बात होनी नहीं चाहिए। फिर अगर मेरा कोई अच्छा प्रोग्राम हो जाता है तो अगले आने वाली सरकार को भी ये फील होना चाहिए कि उसने अच्छा काम किया, चलो इसको लेके आगे बढ़े। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि मैंने आपके प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। अगर अच्छा प्रोग्राम है, वर्थ इट है, तो बढ़ाना ही चाहिए। भामाशाह टेक्नो हब, इतनी सुंदर बिल्डिंग हुई है। किरण शॉ ने, आप जानते हो बायोकॉन की जो है, किरण शॉ ने जो किया वो इतना अच्छा उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ऐसा तो पूरे देश के अंदर नहीं है। और राजस्थान को कभी हम लोगों ने समझा ही नहीं था कि आईटी क्या इतना बड़ा हब बन जाएगा, परंतु we became bigger and better and we were consulting with Karnataka। आपको सबको मालूम है कि कर्नाटक नंबर 1 as far as IT was concerned, but Karnataka sent us a letter to say can you please consult with us because of the big steps that we made in IT, hackathons, digi festivals. We sent 100 children to
व्हाट यू कॉल इट, सिलिकॉन वैली, कि जाओ देख के आओ। बच्चे जब तक नहीं देखेंगे तब तक समझ में आती भी नहीं है। तो 100 चिल्ड्रन वी सेंट दैट। और ये टेक्नो हब हैज बीन क्वाइटली शट डाउन। अब ये टेक्नो हब में क्या होता है कि कोई भी स्टार्टअप होती है जिसको हम लोगों ने कह दिया है, जिसको रेटिंग मिलती है, वो रेटिंग का फंडिंग और गाइडेंस फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जिनको मिलता है, उनको हम उसमें ऑफिस स्पेस दे देते हैं और उनका जो स्टार्टअप है उसको लॉन्च कर देते हैं। अब ये चुपचाप से बंद कर दिया गया है। इतना यूजफुल अब आज के जमाने में इसकी जरूरत है, आप लोग सब जानते हैं। वही आपके अन्नपूर्णा रसोई आज इंदिरा रसोई बन गई है। अब भाई हमने कहा भैया कोई भी हो, परंतु उसका जो आपको रखने की जरूरत थी, आपने ब्रेकफास्ट बंद कर दिया। आइडिया ये था कि ये वैन कहीं भी चलेगी, जाके जहां जरूरत पड़ती वहीं खड़ी रहेगी और वहीं 5 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए में आपको मील्स दे देगी, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। अब वो भी चुपचाप से बंद कर दी। जस्ट इमेजिन यू आर सर्विंग अ मील फॉर 11 पेंस। माने आपके पैसे के हिसाब से 11 पेंस क्या होता है? कुछ भी नहीं है। फर्स्ट दे शट इट डाउन, देन ह्यूज डिमांड हुआ कि इसके कोविड के समय में कि भैया खाने को नहीं मिल रहा है, ऐसी ये वैन्स हैं, 500 वैन्स हैं, कहीं भी लगा दो इसका फायदा हमको मिल जाएगा। तो फिर उसको रीपैकेज करके उन्होंने परिवार का नाम दे दिया, इंदिरा रसोई नाम उसका। फिर मैंने ये कहा था एक नाला था जो कि बहुत ही गंदी हालत थी, उस थी वो पहले पुराने जमाने में द्रव्यवती नदी। तो जहां नाहरगढ़ का पहाड़ नीचे आ जाता है वहां हमने एक जंगल बनाया, फॉरेस्ट बनाया वहां बहुत ही सुंदर, और उस फॉरेस्ट के नीचे से वो द्रव्यवती को नदी के रूप में फिर से ठीक करते हुए इसके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स अलग अलग लगा के फिर वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट करके पानी वापस उसमें डालने का, तो साफ पानी ऑल द वे डाउन नदी के। उसके दोनों साइड में रोड्स बना दिए जिसमें आप जॉग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, नदी के किनारे बैठ सकते हो, ऐसी परिस्थिति। देन सिंगापुर के साथ हमने 3 बड़े बड़े गार्डन्स बनाने का काम किया, बहुत बड़े गार्डन्स, वो भी अब वैसे ही पड़े रह गए। जूरोंग बहुत बड़ी कंपनी है उनके साथ, और साथ में रेस्टोरेंट्स ऑन द रिवर वगैरह। माने उस पूरे इलाके का मेक शेप ही बदल जाता, उसका हुलिया ही बदल जाता। आज कितने सारे लोगों ने, क्योंकि इस बार बहुत अच्छी बरसात हुई, इनफैक्ट फ्लडिंग का डेंजर था, सब लोगों का ये कहना था कि अगर द्रव्यवती नदी नहीं होती तो जयपुर के अंदर के माने घरों के अंदर पानी भर जाता। आज वो स्थिति नहीं है, परंतु आई एम वेरी सॉरी कि ये तो डीजेनरेट हो गया है, गार्डन्स भी मेंटेन नहीं हुए हैं, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट व्हिच हैज बीन लेफ्ट टू डाई। आई एम जस्ट वेरी सॉरी, बट समटाइम्स पॉलिटिक्स takes precedence over good work, and unfortunately development is still not a priority, you know. Still we are caste conscious, still we are samaj conscious, still we are not development is still not the main focus area of any election, unfortunately. So that's the problem. थैंक यू कम। आई थिंक ये भी एक टैबू है कि भारतीय राजनीति अभी भी जाति, समाज और संप्रदायों के आसपास घूम रही है। हो सकता है कि ये टैबू भी, ये नई इस जनरेशन के जो लोग हैं वो इस टैबू को तोड़ेंगे, एंड वी विल फोकस मोर ऑन डेवलपमेंट एंड अदर थिंग्स। मेरे साथ अभी हैं आदित्य सिंह जी जो मेवाड़ से हैं, and he want to ask a question about London, and maybe you will also connect your memories with your stay in London when you were a student here. Yeah. आप म्यूट पे आदित्य सिंह। Khawangani Hugam, it's kind of correlation होगा। पहले मैं जब लंदन में भी लाइक 2009 में यहाँ पे नया आया था, तो तब मैं जब यहाँ पे लंदन में ट्रैवल करता था जो कि लाइफ टाइम है, तो उस टाइम में जैसे जयपुर का जल महल दिखता था ट्यूब्स के अंदर, वहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट या पब्लिसिटी लाइक काइंड ऑफ कैंपेन जो मैं कह सकता हूँ। तो या मुझे जो उदयपुर की मेवाड़ की जो गणगौर जो नाव है वो दिखती थी, और रणथंभौर के भी अब जो शेर हैं वो थे। तो अभी मैं देखता हूँ तो वो सभी इट्स काइंड ऑफ लाइक जस्ट गॉन। तो वो क्या एक कैंपेन था, या हम लोगों को जो लंदन में बैठे हैं जो इंडियंस थे, हमें घर से याद दिलाने का एक कोशिश थी? ये दोनों चीजें थी।
एक तो क्या है कि टूरिज्म, जब हमने अपने सेंटर ऑफ गवर्नेंस को टूरिज्म माना, तो ये जरूरी था कि इसका पीआर कैंपेन भी एक ऐसा कैंपेन हो जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो। आपको याद होगा कि पीढ़ियों से चला आ रहा है आपका वो पधारो हमारा देश। जब भी आप देखोगे तो वो पंखा और वो किसी महल या कोई गढ़ या कोई माने फोर्ट वो दिखाई देगा आपको। हमने कहा कि आज के टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर वो तो हमारी धरोहर है ही, उसके बारे में सब आदमी जानता है, परंतु उसको आगे यंग एंड मॉडर्न यंगस्टर्स के साथ किस तरीके से जोड़ा जाए, उसको ध्यान में रखते हमने पीयूष पांडे, जिनको सब लोग जानते हैं, कितना बड़ा एडवर्टाइजिंग फर्म है, उनको हम लोगों ने मैंने बोला कि भैया आप हमारा एडवर्टाइजमेंट करिए, और उन्होंने एक अमेजिंग कार्यक्रम निकाला, जाने क्या दिख जाए। तो एक तो राजस्थान में आपको मालूम है कि क्या दिखेगा, कि आपको पैलेस मिलेगा, आपको गढ़ मिलेगा, आपको माने हॉस्पिटैलिटी के माने बहुत ही अच्छे लोग, सब जो आप पधारो हमारे देश कहते हैं वो सब लोग आएंगे, ऐसे तो है ही, परंतु एक मिस्टीक भी है। क्या मालूम इस बहुत बड़े स्टेट के अंदर आपको इनके सिवाय और क्या क्या चीजें मिल जाएंगी। जैसे जोधपुर के पास पालीवालों का गांव है, जो पालीवालों का गांव हुआ करता था एक जमाने के अंदर, मालूम नहीं आज किस वजह से पूरा पालीवाल समाज उस गांव का उठ के कहीं और चला गया। लोग कहते हैं कि वहां गोश्त हैं, लोग कहते हैं कि वहां पर उनके गांव वैसे के वैसे रखा हुआ है, तो उस गांव को ठीक करने का काम हम लोगों ने किया। तो वी सेड जाने क्या दिख जाए। क्या आपको मालूम है कि चाइना का जो वॉल है, उस वॉल को राइवल करने वाला कुंभलगढ़ फोर्ट का वॉल भी है? आपको नहीं मालूम? हमें भी बाद में ही मालूम पड़ा, जब इन लोगों ने उसको उसकी मैंने वीडियोस बनाई, तब हमको मालूम पड़ा कि हाँ ये कितना फेमस माने कितना लंबा है। तो ये सब चीजों को देख के हम लोगों ने एक नया मैंने एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनाया, and it was aimed at the youth, and the idea was to take it globally. That's why you saw it on the London tubes, because that is the place where everybody goes, everybody travels on London tubes. But it was not just the tubes, we had even considered actually taking it to the airport and also to the buses, to your London buses, because the London buses are also very visual. तो वो भी हमने सोचा था, but the idea was to give Rajasthan a global platform. The idea was to talk to our diaspora through all of this, to create a sense of pride in our diaspora, to remind them of the wealth that they have in their own homes, and to make them so proud that they will talk and talk and talk about what Rajasthan is, which is what you would have done. But again, whether we do it through our festivals, whether we do it through any of these things, unfortunately, whether we do it through our tourism circuits, the idea was to introduce the world to actually the glory of Rajasthan. I think to some extent we managed to do it, but I'm really sorry that it's come to a halt again. And we've gone back to Padharu Maru Des. So what do I say? So I think आदित्य बन्ना जब उस टाइम पे जब आदित्य बन्ना उस टाइम पे लंदन में जब घूमते थे और वो पोस्टर्स देखते थे, तो शायद इतने दिन पहले नहीं थे, उस बहुत पुराना नहीं है ये, इनके कुछ ही दिन पहले की बात है। I wish I could have continued it really. Thank you. थैंक यू। मैं वैसे पॉलिटिकल सवालों से वैसे मैं परहेज करता हूं, पर कई बार ऐसा लगता है कि कुछ सवाल बड़े अवश्यंभावी हैं, और वैसे मुझे ये भी पता है कि कई बार जो पत्रकार हैं, जो बाकी लोग हैं, वो कई सवालों के लिए पीछे भागते रहते हैं। जिस तरह से आपसे इंटरेक्शन हुआ और जो ये नजरिया देखने को मिला कि एक दूरदर्शिता है या सोच में एक नयापन है। आप एक दूरदर्शी मुख्यमंत्री रही हैं 2 बार, लेकिन दोनों बार जब भी आप मुख्यमंत्री रही, उसके बाद आपको चुनावों का जो रिजल्ट था उसको देखने में आप कैसे चूक गई? मैं आपको बताऊंगा, हमने हमेशा फर्स्ट 2003 से ही, there are 2 ways of dealing with the politics. Either you can go completely political. I believe that if you go completely political and don't pay attention to development, that's a very, very sad state of affairs, because the people that have, जिसने विश्वास आपके ऊपर किया और जिनने आपको जिता के वहां भेजा,
उन लोगों के जो इच्छा, जो उनके विशेष, जो उनका सोच, जो उनका सपना था, उसको वो कभी पूरा होगा नहीं। हमने इसको एक किस्म से बैलेंस करने की कोशिश की। मैंने ये कहा कि नहीं, हमारा सेंट्रल प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट होगा। बहुत झगड़े हुए, लोगों ने मेरे से ये कहा नहीं यार, ये डेवलपमेंट मान चीज कोई नहीं सोचता उसके बारे में, और वेस्ट ऑफ टाइम है, और आप लोग माने कभी ध्यान आएगा नहीं। परंतु मैं मानती हूँ कि आज डेवलपमेंट सेंटर स्टेज इसलिए हो गया है कि लोग उसके बारे में बात करने लगे हैं और सोचने लगे हैं, और आज नहीं तो कल, ठीक है, लोग ये सोचने लगेंगे कि हाँ डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म था। एक दूसरी बात है, आजकल अभी भी कम्युनिटीज बड़ा फैक्टर बन गई हैं, सब रीजनल एक्टिविटीज आपके बहुत बड़े फैक्टर्स बन गए हैं, और किसी के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है। कोई अच्छा काम होता है उसके लिए बड़े झिझक के अपन कहते हैं कि वेल डन, परंतु कोशिश अपनी यही होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कुछ नहीं मालूम उसके बारे में, फिर भी अपन बड़े मजे से गाली गलौज करना और उसको टेयर डाउन करना, ये ह्यूमन एक क्या बोलते हैं कंडीशन है, तो हम लोग करते हैं। इसके साथ आपको डील करने की जरूरत होती है, वो बहुत मुश्किल मामला है। सो द रीजंस बिहाइंड डिफीट्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स। They include things like communities, they include things like sub-regional activities, and they also include things like false promises. हमने जो आपको वादा किया, मेरे से लोग कहते थे अरे बोल दो ना, आप बोल दोगे तो क्या प्रॉब्लम है, मैं देखा जाएगा। मैंने कहा नहीं, जो कर सकते हो वही बोलो, झूठ बोल के किसी का वोट अपने को नहीं लेना है, तो अपने को वही बोलना है जो अपन करें, और जो करके दिखाया आपके सामने वो उसके बारे में आप बताइए लोगों को। तो हमने बताया, परंतु कांग्रेस आई, उनने कहा लोन, सब लोन माफ हो जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के अंदर पूरे लोन्स आपके माफ हो जाएंगे, आपको किसी चीज की चिंता करने की, बिजली आपको फ्री मिल जाएगी। अरे आपने इतने सारे काम किए, तो लोगों ने आपको वोट दिया, और मैं आपको ये कह सकती हूँ कि 1,46,000 वोट्स का डिफरेंस था बिटवीन अस। If we had come back with another 4 lakh votes, let us say, we would have made the government. अब मैं जब इनके बीच में जाती हूँ, मैं पूछती हूँ भैया, अरे साहब अब हम तो आप रुके हुए हैं कि आप कब वापस लौटेंगे। मैंने कहा भैया एक चीज बताओ, जब थे वहां तो इतना काम आपके लिए किया, हाँ हाँ किया आपने, तो मैंने कहा इसके लिए आपने वापस वोट क्यों नहीं दिया। अरे साहब क्या बताएं, उन्होंने कह दिया था कि हमारे लोन माफ हो जाएंगे। तो देयर इज दिस फीलिंग कि चलो यार इन्होंने 50,000 माफ कर दिए, पर वो तो कह रहे हैं मेरे सब लोन माफ हो जाएंगे, चलो एक बार वोट करके देख लो। तो अब बातों में आ गए, सर हम क्या करें, हमारी गलती हो गई, हमने किया। सी द आइडिया जस्ट नाउ is to bring development center stage, and even if sometime we have to lose for it, it is worthwhile, because they know that in the regime of BJP 2003 to 2008 ye kaam hue in the regime, and we got it. See, 163 is a record vote out of 200, and I know that today they are so sorry that they will give us 180 and bring us back because of what they're seeing just now. But the point is that I have to make it, because of poverty, because of education not having spread to to every nook and corner, there is still maybe another 5 years before this will start to change. But we are the precursors. We've allowed them to think that development is possible, and this is very important, because if there is no development, what are you going to say to your people? Every political party has to be proud to say, yes, we changed the lives of these so many people in this much period. I feel I am proud to say that I have been able to change, and even if I got those 5 years, I was able to change people's lives. So 5 years there and 5 years after, so that a person can say कि भाई आपने इतना कुछ किया, हम तो यही चाह रहे हैं कि आप फिर वापस आ जाए। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और वो कह रहा है क्या करें सर, हमको तो ये लगा कि हमको मिल जाएगा, लोन ही माफ हो जाएगा तो हमारी तो जिंदगी बदल जाएगी। हमने सोचा, मैंने कहा ऐसा मत सोचो, कभी कभी विश्वास करो। तो those things have to happen and it will take time,
But it will happen. Rajasthan has a psychology of changing it once and twice like this. But I also told them, मैंने कहा देखो, इसका जो प्रॉब्लम है वो आपको है, हमको नहीं है. समझो आपने आज मेरे को वोट करके मुझे मुख्यमंत्री बनाया और मैंने काम नहीं किया. जैसे अब अशोक गहलोत काम नहीं करेगा क्योंकि उसको मालूम है कि आप 5 साल बाद चेंज करके वसुंधरा राजे को दोगे. और वसुंधरा राजे के भी उसमें गले में अपने दिमाग में और दिल के अंदर ये बात हो गई कि चलो यार अगली बात तो ये अशोक गहलोत को देने वाले हैं तो मैं भी काम नहीं करूं. तो सब अपने लोग आराम करने लगेंगे तो राजस्थान का काम कौन करेगा. मैंने कहा तुम लोगों को नुकसान होगा क्योंकि तुम लोगों को हम लोगों के ऊपर अंकुश रख के काम करवाना चाहिए. हमको आलसी नहीं बनाना चाहिए. ये उल्टा काम हो रहा है. But it will happen. It will happen as people get more and more aware, as technology joins people across the world. These things are going to happen. So this is a beginning. It will happen. थैंक यू. आई थिंक दीपक जी मेहता जो हमारे साथ हैं, आप शायद जानते होंगे मानक, जो एक बहुत पुरानी राजस्थानी पत्रिका है. Of course. हाँ, हमारे साथ वो काफी वर्षों से है. राजस्थान एसोसिएशन जब से अस्तित्व में आया तब से दीपक जी मेहता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्पेशली राजस्थानी के प्रचार प्रसार में उन्होंने हमें बहुत गाइडेंस दी है. हम बाहर रह के भी यदि राजस्थानी के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहे हैं, वो उसमें दीपक जी का बहुत बड़ा योगदान है. तो शायद हमने इनके डिस्कशन से एक चीज सीखी है कि हम लोगों से ये नहीं पूछते कि आप राजस्थानी के लिए क्या कर रहे हैं, हम शायद खुद से पूछते हैं कि हम खुद क्या कर रहे हैं. तो दीपक जी यदि आप ऑनलाइन हैं तो आपका जो प्रश्न है प्लीज पूछें. हुकुम, नमस्कार. हाँ दीपक जी नमस्कार. बस मेरा एक सिर्फ ये था कि आपने बहुत टाइम से मतलब 1992 में भी जब वोट बैंक का दफ्तर किया था, रहे हैं, मौजूद रहे, राजस्थानी की लड़ाई में आगे रहे हमेशा, और अब तो आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भाजपा की. तो यही चाह रहे थे कि कैसे कब हम सब राजस्थानियों का जो मान है, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति को एक मुकाम तक पहुंचाने का एजेंडा है, जो मान्यता का जो सवाल है, सवाल हो गया आजकल. आपका किस तरह से उसमें सहयोग मिल पाए, हम इस भाषा को मान्यता हमें मिल पाए, उसके लिए आप क्या सोचते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहिए हमें? सबसे पहले तो मेरे को आप बताओ कि आप कोविड से के बीच में वहां कैसे पहुंच गए? मैं दिल्ली था, बाय रोड जा रहा था, तो बस वो मुझे यहाँ तो कोई किधर नहीं जा रहा है और आप लंदन पहुंच गए. कहाँ से हो? हाँ कहाँ से ज्वाइन किए हो? आज इंडिया से ज्वाइन किया. जा रहा था जयपुर से. कहाँ से? जयपुर से दिल्ली जा रहा था, रास्ते में ही था मैं, रास्ते में से ज्वाइन. यही हो. यस, ओके ओके. आपको अच्छी तरह से मालूम है क्योंकि अपन लोग इस पे काफी दफा बात कर चुके हैं कि देयर हैज टू बी अ कंसेंसस डिसीजन ऑन द राजस्थानी भाषा एज सच. ये यहाँ आप लोगों के जो डिफरेंट डायलेक्ट्स और वो सब हैं, उसके ऊपर इन लोगों का सबका लड़ाई झगड़ा चल रहा है. अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के 7 संभाग हेडक्वार्टर्स हैं. तो चाहे वो बीकानेर हो, चाहे कोटा की भाषा हो, चाहे जोधपुर की भाषा हो, चाहे जयपुर की भाषा हो, अब ये सब कहते हैं कि हमारी भाषा बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है. अब ये तय कर लें कि ये कौन सी भाषा करने की है. हमने तो इन लोगों को ये कह दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और हम लोगों को सबको एफर्ट्स करके 6th शेड्यूल के अंदर राजस्थानी भाषा को लाने की पूरी कोशिश करने में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए. ये दीपक जी, आपके पिताजी और आपका पूरा माने सब लोग आपके जो हैं, वो सब लोगों ने इस पे कितनी मेहनत की है मैं जानती हूँ. और हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारी मेहनत राजस्थान में चलती गई है और आपने तो इसको छोड़ा भी नहीं है अभी तक. हम लोगों ने तो राजस्थानी यात्रा भी, आपको याद होगा, राजस्थानी रथ यात्रा भी वहां शुरू की थी 2015 के अंदर कि ये काम, इसको भाषा को ऑफिशियल स्टेटस जल्दी मिल जाए. इसको अपने को पीपल्स मूवमेंट बनाना ही पड़ेगा और डिमांड मस्ट कंटिन्यू सो दैट वी कैन मेक इट पॉसिबल. बट दीपक जी, वी हैव टू गेट डाउन टू कमिंग टू दिस, बिकॉज हम लोग इन सब के लिए आसान कर रहे हैं. वो लोग सब बार बार हमसे यही कहते हैं कि बताओ कौन सी भाषा. तो बैठ के ये तो तय करवा दो सबसे कि कौन सी भाषा, कैसी भाषा, वो तय हो जाए और फिर उसके बाद फिर कोई झगड़ा ही नहीं है. ये कंफ्यूजन हमेशा सब लोगों के माइंड में सब मार रहा है हमको. इसीलिए माना जा रहा है कि हर 14 कोस पे अपने राजस्थान में बोली बदल जाती है. तो ये सारी बोलियां जो है, ये मिलके ही हमारा एक धरोहर है. सबसे बड़ी हमारी भाषा की जो विविधता में एकता वाली बात है, और यही
में सबसे ज्यादा बोलियां हैं। जैसे गुजरात में भी कच्छ में अलग तरह से बोली जाती है, सूरत में अलग तरीके से बोली जाती है, बट इन सब को बोलियों का जो मिश्रण है राजस्थानी वो है। हमको तो पहचान चाहिए ताकि हमें राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलने से नौकरियां मिले, लोग आगे बढ़े, अपनी मातृभाषा को भूले नहीं। अब आप देखेंगे कि लंदन में ये लोग रह के भी अभी तक अपनी मातृभाषा को मतलब अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, बोलवा रहे हैं, और हम यहाँ पे भूलते जा रहे हैं। अब जो यही सरकार मैं ने कह रही हूँ कि जरूरी है कि एक दफा बैठ के तय होके एक दफा इसके ऊपर फिर झगड़े नहीं चाहिए अपने को, अपने बैठ के हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ आपका सपोर्ट रहता है हमेशा। आप भाषण में भी, सभाओं में भी जब संबोधन करते राजस्थानी में किया है आपने, कई बार हमने सुना है, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। को कई बार कि क्यों नहीं आप लोग डिसाइड कर लेते हो, इससे तो सब लोगों को आसान हो जाता है कि सिक्स शेड्यूल में डालना है, क्योंकि राजस्थानी तो कभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, तो ये डिसाइड हो जाना चाहिए एक दफा के लिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल था। और मैं अभी, जब आपने अभी यात्राओं की बात की तो तुरंत मुझे याद आया कि जब आपने शुरू में एक बार एक परिवर्तन यात्रा ली, फिर उसके बाद आपने एक स्वराज यात्रा ली, और मुझे लगता है कि हर आदमी को यात्राओं का एक बड़ा शौक है, या एक पैशन है उसका, कि उन यात्राओं और उन पैशन से लोगों से कनेक्ट करें। तो जो आपने परिवर्तन यात्रा और स्वराज यात्रा ली, अब आपका आगे का क्या प्लान है इस बारे में? अभी बता दूं तो क्या मजा आएगा, इसके लिए तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। लेट अस वॉच, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको तो मजा आ रहा है, हमसे पूछो कितनी मेहनत होती है ये। कोई माने अगर आप फॉर 300 डेज 200 डेज का करते हो तो मेहनत माने आपकी हड्डी पसली एक हो जाती है। मजा तो एक और है कि अलग अलग जगह के लोग मिलते हैं, उन लोगों का प्यार मिलता है तो मालूम ही नहीं पड़ता है, ये भी बात सही है। सो होगी, I'm sure होगी, but there is a time for that and I'm sure in good time we'll tell you. ठीक है, शायद उसका सबको इंतजार रहेगा। और ये एक ऐसा प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ राजस्थान एसोसिएशन, शायद हो सकता है कि राजस्थान और देश का जितना भी पॉलिटिकल हल्का है वो इस सवाल का जवाब हमेशा ढूंढना चाहेगा। मेरा जो अगला सवाल है वो बहुत व्यक्तिगत है, जो मैंने खुद ने सोचा कि मुझे कम से कम मेरी तरफ से ये एक सवाल होना चाहिए कि हर आदमी की जिंदगी में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, और स्पेशली वो रोल मॉडल्स उसके बचपन में ही डिसाइड हो जाते हैं, जब वो बहुत कुछ समझता नहीं है। बचपन में ऐसे कौन है जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया, और आज भी आपको जब ऐसा मौका मिलता है तो वो हमेशा प्रेरणा पुंज बन के खड़े रहते हैं? आपसे कोई ये बात पूछे तो मुझे तो ये लगता है कि जनरली आप या अपने परिवार के या तो पिताजी की बात करोगे या माँ की बात करोगे या कोई परिवार का बड़ा बुजुर्ग हो उसकी बात करोगे। आज मैं ये यहाँ ये कहना चाहूंगी कि मेरी इंस्पिरेशन, मेरी गाइड, मेरी टीचर और someone who I was very lucky to work with for a longish while was my mother, because she was totally, I mean, I have never seen, and I've met lots of politicians, somebody who was the epitome of simplicity, and yet there was a great deal of strength and humility of an extraordinary order. माने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी छोटे से छोटे आदमी के सामने सिर झुकाने की आदत। और मैंने हमेशा ये कहा कि, और उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी से, आपके कपड़े से, आपकी घड़ी से आपकी पोजीशन नहीं बनती, आप किस तरीके से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हो, किस तरीके से एक दूसरे को गले से लगाते हो, किस तरीके से इस पॉलिटिक्स के अंदर सबको, सबकी मेहनत माने सबके लिए कुछ करने की कोशिश करते हो, कि राजनीति एक सत्ता का नहीं बल्कि एक सेवा का माध्यम है। क्या ये आप अपने अंदर इसका अनुसरण कर सकते हो? अगर ये किया तो पॉलिटिकल सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ये उन्होंने मेरे को समझाया, एंड दिस वाज द वन, आई बिलीव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स आई हैव लर्नड in politics. It's very difficult, very, very difficult. I can tell you, to be, to carry on being humble in the face of all kinds of problems. It's not easy, but she said it's a big lesson. If you can learn it and you can add to it patience, she said it's an unbeatable combination. But if you care, you must care from deep down inside, not ऊपर ऊपर से। शायद माता पिता के साथ दुनिया में हर आदमी का एक विशेष कनेक्शन होता है,
वो जब साथ होते हैं तब भी, जब वो साथ नहीं होते हैं तब भी, और जब वो इस दुनिया में नहीं होते हैं तब भी। और वो कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जो हमेशा रहता है। और आदमी जब खुद के अस्तित्व के बारे में जब सोचता है तो हमेशा उसको ये लगता है कि उसका अस्तित्व उन्हीं माता पिता ने गढ़ा है। अब इन्हीं सवालों से मैं अगला एक सवाल लेना चाहूंगा, जो अ, मुझे पता है कि पहले वाला सवाल हम उसकी डिटेल में नहीं जा पाए, लेकिन उसका उसका जवाब भविष्य के गर्भ में है। पर आपसे यदि पूछा जाए कि अगले 10 सालों में आप राजस्थान में कौन से परिवर्तन देखना चाहेंगे, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि जो अच्छी होनी चाहिए अगले 10 सालों में विजन के तौर पे, तो उस पर आप क्या फरमाएंगे? अरुणा जी, मेरे को बहुत दुख है कि राजस्थान को अभी भी उसका उचित स्थान हमारे इस देश के अंदर नहीं मिला है। I believe Rajasthan has what it takes to be a leader. It is a state with a lot of gumption, a lot of guts, and we have not been able to find that right spot for ourselves. So, in the Rajasthan of मेरे सपनों का राजस्थान जो है, talent is the only measure. You must be talented to be able to get there. Gender must not be a hurdle. क्या है, महिला हो पुरुष हो, अगर आपने अच्छा काम है, आइडियाज हैं, तो जस्ट बिकॉज महिला हो इसलिए आपको पीछे कर दिया जाए, मैं समझती हूँ कि इट इज नॉट फेयर. सो जेंडर शुड नॉट बी अ हर्डल. देयर मस्ट बी equitable opportunities for everyone, whatever they may be. A leader in innovation and technology, we are already there, we need to keep it going. We have to be the world's most tourist friendly place, and I'm sure we can be because we have everything that takes us to that point. We need to be able to see that there is education and healthcare for everyone, and most important, that education has to be quality education. So see, now we were able to change our 0 to 12, we were able to change that and do well with it. But we needed to change now the college education and bring it in line with the scenario of the world. I believe that that kind of quality education will see that the children don't have to go anywhere. They will want to study, and people will want to come and study in Rajasthan. That's the kind of dream that one has, that the person from Rajasthan, if anybody comes to set up an industry, he doesn't go to Bangalore to find people. He doesn't go to Tamil Nadu or Bengal or Maharashtra to find people. He knows that there are people available in plenty in Rajasthan itself. That is the dream, and that I believe we can do. If we all set our minds to it, it can happen. थैंक यू। आई थिंक यदि हम राजस्थान के विजन की बात करें तो जो बहुत सारी चीजें जो आगे करनी है उनकी एक बहुत लंबी फहरिस्त और एक लिस्ट होंगी। वैसे आज हमारे साथ और भी कुछ और गेस्ट जुड़े हैं, मैं बस उनका जल्दी से नाम लेना चाहूंगा। इंदू जी बारोट है हमारे साथ, देव शर्मा है बर्मिंघम से, जिनके फैमिली में शायद धौलपुर से कनेक्शन है। हमारे साथ अविनाश जी कल्ला है, जो आप जानते होंगे, लेकिन आज की डेट में अविनाश जी कल्ला वो जयपुर से हैं, पर अभी वो यूएस गए हुए हैं इलेक्शन कवर करने के लिए। एंड मैं जब उनसे डिस्कस कर रहा था तो उनका भी एक सवाल था, तो मैंने कहा कि नहीं, आज की डेट में तो आप भी ग्लोबल राजस्थानी हो क्योंकि आप राजस्थान से बाहर हो। सो आप इस प्लेटफॉर्म से एक सवाल पूछें। अविनाश जी, यदि आप ऑनलाइन हैं तो आप सब प्रश्न पूछें प्लीज। Hi, ma'am. Good evening. Hello? Avinash. Hi. Hi, ma'am. It's so nice to hear you. Ma'am, what I've been seeing in my limited experience is that we do a very limited reach out to our Rajasthanis who are settled abroad. And like you said, that if somebody has to come in, Rajasthan should be the place. What could be done idealistically to change that mindset and make sure that things happen in Rajasthan? A leader has a vision. You have done it in the past. But there are hurdles. There are systematic hurdles. How could they be overcome? And how could these NRIs be made mainstream? Avinash ji, actually it's an interesting question because it's the one thing that we are not able to get over. Why? Because we need more than 5 years to be able to put all that into place. Every time we get started, like say Resurgent Rajasthan, it was a very interesting idea to bring people in. We managed to put down almost, let's say, 68,000 to 70,000 crores of rupees actually on the ground. But there were so many problems that we
that we had to get over, and there are hurdles. Now, what has happened is central government has also made things easier at the central government level, and if we can feed that into at the state government level, that makes a difference. But just as we are coming into line, governments change, and then again you have a problem. So one is one of those things. But I mean, even then, besides that, there are other things in which we can have partnerships. You can have partnerships in museums, you can have partnerships in art and culture and education, universities. Already that's happening. You can see that in schools, in teachers training. We did some very good work with teachers trainings. We have got partnerships now today in the medical colleges. In fact, that was what I was looking for, and that would have been my last in the colleges, because I believe that medical colleges could have partnered with very important colleges in London, in US. We had already started work on that, but we were not able to take it to its logical conclusion because there were some problems. But apart from that, there was also very little time. 5 years is just too little to get all that done. But reorganization of schools, for example, we found that in the World Economic Forum, there was something called the Jordan Education Initiative, which we brought back. And all the IT majors, that is Dell, Cisco, this one, that one, everybody got together and worked with us for IT upgradation of teachers as well as for schools. And that really worked well. But of course, as soon as the government changed, that also went out of... It's very difficult. I think there must be some kind of ruling thought, agreement, maybe between parties, where people sit down and start thinking to themselves that the good things that each one does should not be flung out the window. And people have to start thinking that development is very important. Yes. So if so-and-so has done this development, yes, thank you very much, but we need to now progress that. And unfortunately, those are the hurdles that we still have to get over. There are still things within government. Government takes a long while to get things moving. And that's why I keep saying that government has no business to be in business. They really need to be just there to help move everybody along. Because in just the idea of me being in business or government being in business, I then make it more difficult for other people. That is not a good idea. So we should step back, allow business to do what they have to do, and we have to put these things into place, and time is required. So let's say I last time did my Resurgent Rajasthan in the 4th year. So because I did it in the 4th year, there was so little possibility of putting it down in the next year. This time I did it in my 2nd year. So by the 4th year, I was able to put down a large amount. But in spite of all the pushing and the pulling, we were not able to do it completely. And I believe that the next government should have helped them on, to put those things which were left over into place, because they were already chewed about, they had already been thought about, they had already been worked upon. So why waste all that energy? Unfortunately. So I believe that there are people who are sitting outside, who have the talent, who have the brains, who have the thought about culture, who understand that Rajasthan is a very important part of India. And so many of our initiatives have already got global acclaim. But all of these things can be partnered in, and it doesn't take very much doing. So I believe this can be done, and we need to push it along. Yeah, it would help if we got a little more time, but then that's what you have to work with, and it's very breathless. So in 5 years, you really cannot, by the end of it, you are spent. Really. Exhausted. Yeah. Yeah. All right. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks a lot, and I hope you will have a good news from US when you are covering this US presidential election. Yeah, I'm looking forward to that. Actually, Avinashji, we're interested to know how these things happen, and this is a particularly riveting year. It is. So it's going, yeah, it's going to change a lot of things or not change them. Let's see what happens. And so it'll be so useful to hear from you about these things. Absolutely. I'm trying to capture all what I could in the limited 40 days that I've got here. Since he said very categorically that he doesn't intend to move out of the White House even if he doesn't win the election. How does that work? Well, things have changed. Things have changed in the last 10 hours. I believe he's now in hospital because of the COVID. Yes. Yeah. And it seems it's someone has come. Yesterday in Connecticut, people were saying that he was made.
putting a mask an idiot, and now see who's been proved one. So one thing which I liked about the people here, that they are very open in their thoughts. They don't mince words. They fight back and they give it back. Yeah, but Yeah. Let's see. Let's see, ma'am. politics is, yeah. Okay, let's see. Let's see what happens. Thank you. Let's see. It's Thanks, going to be Avinash. dicey. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. In our patriarchal society, especially even in RAUK, is also like a male-dominated sometime, but now we have a fair representation of female and respectable women, those who are leading us from the front. Rakhiji Gehlot, she would like to ask a question. Can I request Rakhiji Gehlot? Hello, ma'am. Thank you very much for giving me this opportunity to speak to you. And I would like to understand that, you have been on so many prominent positions in your political career, and you have done so much, and your personality is like, it speaks volume. I would like to understand what do you think are the crucial qualities for being a true leader? Very simple, Rakhi. Of course, you have to be able to do a lot of hard work, but alongside that, you need to be able to bring in things like compassion, a huge amount of courage, I can tell you, and certainly communication. Because if these three things are there and you are prepared to work, I think a lot of things can be solved. Thank you. Thank you, ma'am. Okay. Thank you. Thank you. But I see, think we are almost at the end of time. yeah, we are. Yes. Notice. Okay, I have to bring it to Yes, that. I can see the time. We have very limited time. No. It was not just the time. I'm just bringing to your notice the fact that the first woman to speak has come almost at the end of the meeting. Do you think there's something to be learned from this? We should learn one thing from this: that woman is always the backbone. Yeah, it's So going to happen. yes. Is Rishi Bhai here? Hmm. Okay. So maybe we have one or two more questions, and then I would like to conclude the session. I think Rishi Bhai wanted to ask about a few things, but probably he couldn't join today. Before we finish, I would like to introduce you to Dev Sharma. Dev Sharma, are you online here? Yes, I am. Yeah. Okay. Dev, I will advise Dev. I think you should introduce yourself because you are highly confident, and there are 2-3 connections between you and Vasundhara Madam. So I think you should introduce yourself. Thank you, Harindraji. Good afternoon, Vasundhara ma'am. It's such an honor to be able to speak to you. You're such an inspirational woman in politics, and we hear so much about what you do from the other side of the world. I hope my name's good Dave. Oh, sorry, I'm sorry. I hope Continue. good things. No, definitely good things, great things, very positive. My name is Dave Sharma. I serve as the youth MP for Leicester, which is a city in the UK. I sit in the youth parliament representing over 230,000 young people. So I was recently elected before COVID in February, March time, where all young people in Leicester voted and across the country voted for their youth MP. Funnily enough and remarkably, very interesting, I must say. Yeah. Oh. Thank you. Funnily enough and remarkably, our history and my roots actually connect with your home city of Dholpur. Yes. So my dad is Sushant Sharma. His dad is Suresh Chand Sharma, who is the younger brother of Banwari Lal Sharma. Banwari Lal Sharma, yeah. whose son Ashok Sharma is working very hard with me. Yes, and So, there's very uncle? close connections. Ashok is your uncle? Ashok, yeah, is my Ashok Tao is my Tao. Yes, that's right, uncle. Okay, I must tell him that I had you on this chat line. Yeah. Thank you. And how long have you been out, Dave? Sorry? How long have you been out? So I'm born and brought up in the UK, and but throughout my whole life, I've always heard about you, positive things about you. Every year I visit Dholpur. Every year I come to Dholpur. I've seen the next palace. Time you come to Dholpur, come and see me if I'm there. Thank you. Well, definitely. And I visit Dholpur every year before COVID. Seen the palace, seen all history, the rich history, the Chambal River. It's literally been a part of my life. You must come and see me.
Thank you, and I definitely will do. We'll arrange something after COVID. Yeah. But yeah, so you've been a remarkable figure and a really inspirational figure. And my first question to you is, you've been so influential in politics, not only been a member of parliament, but also been the chief minister, the CM of Rajasthan. Yeah. What is your biggest political achievement in terms of youth over the last 30 years? You know, that's an interesting. I think that the problem that I came to when I first walked into politics was a bunch of young people who were desperately looking for jobs. Employment was an issue that was so huge, and our children were not ready for it. Because it's not just about being educated, it's also being skilled. And so they were running about all over the place looking for a job. So today, Rajasthan has two huge skill universities. One in the government sector, it's the first one. And in the private sector, it's a huge, it's a tie-up with a Swiss company that are doing multi kind of skilling for us. So now what is happening with it, and that I believe is one of my big achievements, is the fact that we have been able to skill so many youngsters and in numbers provide jobs every year during our regime to the youngsters. Because more than anything else, this is what counts for them. And I went to the extent of saying that you cannot be a burden on your parents. So for 2 years, after you have educated yourself, I will provide you a stipend to keep you going so that they don't have to carry your burden. And within 2 years, you must find your job. And I believe that 2 years is enough time if you are skilled, if you are educated, to go find yourself a job. And I want you, more than anything else, to find that job in your own state. I don't want you to go out because now there's a big fight on because everybody wants to be a government servant. And I've said to them that now this urge to be a government servant must be stopped because you have to start to learn to stand on your own 2 feet. What is the reason that all of you want to go to government jobs? Because you get these unheard of salaries and you have working hours that are actually of no use to man or beast in the state. And that's exactly what you want. So you come when you want, you go when you want, you have a salary of the nature that you want. And I mean, I need you to give back something to society. So I'm saying to you that I'm now pushing you to become self-employed, if possible. You can start up and do businesses on your own. So you start not only being self-employed, but you employ 2-3 others. Now the skilling universities are giving you the opportunity to understand and learn. The ITIs in various districts are giving you that opportunity too. So you should be able to get skilled enough to stand on your own 2 feet. And then there is private industry. And then there are things like NGOs and things which are people are working. Those are different altogether. But I want to be able to drive you away from going to government service and learn to be able to create an economic add-on for the state. For that, I have to polish you up. And that is what I've been working on. It's one of my most important. So whether it's in tourism, whether it's in any of these things, hospitality, whether it's in IT, whether it's in education, health, all of these things, we are gearing up, trying to push our youngsters to take that one final step. And I am very happy to be able to tell you that in those 4 or 5 years that we work with Skill, we've always been top in the country. And we've been able to give 5-7 lakh people a year, 5-7 lakh people jobs. But I always say it's never enough because whenever I make you a partner with government and give you self-employment, I expect you to be able to produce as many jobs for me. So this goes on rolling. And for me, this has been one of my most important steps. I believe that it needs to be carried on because employment today is one of the most difficult things that is facing any government, any kind of government in the country, whether it's state or center. I think that's amazing because we face the same issue in the UK where we finish university, we finish our education, but there are so many there's so many less jobs, there's so many students, and I think what you're encouraging is not only increasing productivity, but it's also increasing the state's economic output, of course, and also giving more people more skills, which young people lack after they finish their education. My second question to you, which follows on and spurs on for the first question, is as a British Indian serving in the youth parliament,
I've seen a vast amount of British Indian youth MPs, and we share our heritage. We want to share our heritage more and more vastly. So, is there something that you would endorse or support where British Indian youth MPs can work with Indian politicians and form a sort of correlation and understanding and work together and share heritage and share like experiences? Now MPs are a central government thing, but I would encourage, if there are MPs, to work with the local state unit, to work with the state on subjects of their choices. For example, some of our MPs are interested in doing certain things, state would stand in between, and of course, why wouldn't we want to encourage it if there's some good ideas that are coming out of these interactions? So yes, of course, why not? Whether you do it with business, whether you do it with members of parliament, whether you do it with academia, all of these things are open, and whether you do it with culture and craft, I would be open to any of these. And if there are good ideas, I would take those good ideas. Thank you very much. I think we have taken much more than what we were expecting. जितना हमने सोचा उससे ज्यादा समय मिल गया. मैं आखिरी सवाल पूछूं उससे पहले आपकी इजाजत हो तो मैं इंदु जी से रिक्वेस्ट कर सकता हूं, उनका आखिरी सवाल आपके लिए. हाँ, श्योर. इंदु जी. क्वेश्चन है कि यहाँ पे जैसे ब्रिटिश या और यूरोपियन जितने भी स्टूडेंट्स अगर आते हैं, वो अगर उनको कहते हैं कि भाई हम राजस्थान, तो उनका एक ही क्वेश्चन है, अच्छा वो वाला राजस्थान जहाँ इतने बड़े बड़े चूड़ियां पहनती हैं, दूर से पानी लाती हैं, तो वो जो वो टैग लगा हुआ है ना कि भाई हम बहुत कंजर्वेटिव है या इस तरह से, तो ऐसा कुछ सोल्यूशन नहीं है क्या कि वो टैग हमारे यहाँ से हट जाए और एक राजस्थान को एक अलग पहचान? इंदु जी, मैं वही आपको कह रही थी. सबसे बात तो आपको पानी की प्रॉब्लम सॉल्व करने का मैंने आपको बताया कैसे कर सकते थे. दैट इज ऑलमोस्ट सॉल्व्ड. और मैंने तो ये भी कहा था कि प्राचीन बावड़ियां जो है ना, उन प्राचीन बावड़ियों को भी पैसे अलग से देके उनको फिर वर्किंग कंडीशन में ले आओ. बिल्कुल. तो इनको कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं होगी. तो ये जो आपकी तस्वीर होती है ना कि आगे आदमी नहीं, पीछे उसके महिला, उसके सिर के ऊपर वो बंडल, उसके पीछे वो लड़का, वो चीज को अपने को पूरी तरह से स्मैश करने की जरूरत है. वो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि हम उसको किस तरीके से. इट इज टू एम्पावर वुमेन. It is absolutely important, and only the women can do it for themselves. We can help. I can be supportive. I can set up all those situations that can help women, but they have to also step out and get counted. So I believe that by doing this, I mean, पानी की बात कर रहे हो आप, आजकल they are all part of the IT movement. All the young girls are now part of the IT movement, and in a short while, that's when I said to you that I'm doing this ad campaign for Rajasthan. I don't want to do that ad campaign which was Padharo Maro Des, because I want to get away from that. So the new campaign, as Piyush Pandey said, was to go for the young people. They're saying an exciting, mystical, different, beautiful place is there for the taking. And you never know what you find around every corner, but just go to Rajasthan and see what it's all about. So through those campaigns, through, I mean, different types of messaging, we are trying to make it into, and therefore we expect that our diaspora also talks about it like this. And if you people talk about it, we forget that picture of that man with that woman and that bundle on her head and that child. That has to get scrubbed. And you've got to go out there and start talking about things like, you know, the new businesses that girls have started. And there are plenty. So we have to look and we have to talk about these things. And every year we are honoring those women who are doing amazing work. Slowly, but surely, this is happening in Rajasthan. And I'm sure that image will, in time to come, will be something of the past. Thank you. I think before I come to last question, what is your message for the global diaspora from Rajasthan? I believe that the diaspora, first of all, extremely important to Rajasthan. See, I look at it this way. First of all, there are us people who live within Rajasthan. Then there are those people who live outside of Rajasthan, but in India. So you find them in different states.
We try to go out once in a year to, let's say, Bangalore or to Calcutta or to Surat, and we meet with the diaspora and see what's happening there. And this, thanks to COVID, this has all come to a halt. But this was something that we did almost on a regular basis. But apart from that, then the third layer is all of the people who are outside the country. And the diaspora who are outside the country are closely linked to the state itself, because they are linked to every aspect of life. And I believe they are our finest ambassadors and serve as extremely valuable components and also an extension of our foreign policy in that sense, if you look at it like that. They have a very crucial role to play, whether it's political, whether it's social, whether it's economical, and whether, of course, even if it's cultural. I mean, if you look at it this way. I think that everyone can really participate, and I keep telling everyone this, that yeah, you can do it by promoting trade, you can do it by promoting foreign direct investment. We did this through the Resurgent Rajasthan program. You can create businesses, you can spur entrepreneurship. That's also something that is within your hands. And there are people who look up to you because of the business that you've done in the various countries that you're in. And those things can be brought to bear on the youngsters today, because they are looking to see from that what they can learn from you, so that they can put that into practice and start becoming what you call it, can stand on their own 2 feet themselves. It's about transferring new knowledge. It's about transferring skills. See, I sent all these people to Palo Alto and to Silicon Valley. There were lots of Rajasthanis there. I was able to meet with those Rajasthanis. Those Rajasthanis, because they were studied in Pilani and all that, they were part of things like Cisco. I was able to go to the Cisco office, not because of the foreign connection of my country, but because of the connection of my diaspora. There were 3 people from Rajasthan there, and they were at number 1, 2, and 3 at the time I was there. So I was able to meet John Chambers, who was the big man at that time, and I was able to meet him only because of the fact that it was my diaspora. It was not my foreign ministry that gave me that in. So I'm trying to tell you, it's amazing. So it's very important that this kind of new knowledge, and there were angel investors. There were people who would be happy to encourage youngsters who were doing well, and they said so to me. So, and then while you can be agents of economic and social development, you can make non-economic contributions also. You can influence thinking. You can talk about identity. You can talk about sense of belonging. You can talk about giving assistance. I went to America with the doctors, and we set up programs. We visited the Northwest Hospital and some other hospitals, and we were able to set up programs with our SMS and their hospital, which was useful, especially for the training of nurses. They are short of nurses. We have lots of good nurses who want to have training. So they would go abroad for maybe 2 years. They can work with them and then come back to us and give us good service. So yes, you can do all that. Then assistance at the time of natural disasters. And then everyone has family in Rajasthan, or some kind of family, or some kind of base. So you can improve facilities over there, maybe a school, maybe a midday meal program that you can work with. There's healthcare, there's education. People have picked up schools and worked with the schools, government schools, and they made partnerships and worked and done a good job there. Training of teachers, they helped do that. Education in the towns that you come from, where you are saying, mere maa ke naam pe, mere family ke naam pe, something can be set up. And I say all of this is okay, but the diaspora has and does partner with government in many direct and indirect ways, and I think that those options need to be explored. Indians have made a name for themselves and are basically counted at the time of the vote. If you remember, now we are so important. There was a time when no one really bothered about us. Today, why are we very important is because whether it's in America, whether it's in UK, everybody knows that the Indians count. So you are not just there for nothing. They will come to you, and they come to you. And we are proud of the fact that there are leaders of society within the Indians who the political people approach. So you are there and solid and strong for yourself.
So that can be some of help to us, because you can guide those kind of educational programs or health programs to us that we can work with. And in the end, I'll say that your successes are a matter of pride for us. They, I'm sure, make the country proud, but they make us in Rajasthan extremely proud. And I think that you see that we celebrate this Bharatiya Divas. The idea is that we commemorate the efforts of the Indian diasporas around the world. So that's very important for us. And I have been able to attend one or two of these. Plus, I have attended the Hindi meeting in London. And I think that all of us want you to continue to contribute in building the new India and, of course, the new Rajasthan. And just remember, everyone, it is your India, your country, and you can make it better. And so, exactly the same way, it is your Rajasthan, and there is a responsibility to make it better. So, I don't think I need to say anything more. I can only say that there is a great expectation, and today, having had the privilege, thank you very much, Harinderji, for allowing me to meet with so many interesting people. Ladies, it was a pleasure meeting with you both, Induji and Rekhaji. And I'm sure that Harinderji, when you do a program of this nature again, you will try to almost make it 50-50 so that we see the ladies in a greater numbers. I look forward to doing this kind of program with you, because it is always interesting to meet with people. And I'm really, really grateful that you gave your time. And let me tell you one thing, I have enjoyed every minute of this. Thank you. Like, I'm on behalf of Rajasthan Association UK, Alok Sharma. I'm thanking you for giving your time, and we will make sure that we have taken this point that we should have equal opportunity for all, and especially gender equality. We were talking about that. So thank you very much for guiding us again for that. So thanks for joining today's program. Vasundhara Raje ji, aapko thanks. Kuldeep ji, for giving your time to us. Our pattern, always you give us time. And thanks Indu ji, Rakhi ji, Pradeep Bera ji, Rais Bharti ji, Surya Pratap ji, और अनुभव जी, नंदलाल जी, जो भी लोग आप सब लोग हमसे जुड़े, विक्रम जी ऑस्ट्रेलिया से, राणा जी जर्मनी से, जितेंद्र जी ऑस्ट्रेलिया से, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला आज के लिए। राजस्थान एसोसिएशन आपका आभारी है। और वसुंधरा जी, आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमको समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। हाँ, थैंक यू आपका। मैं इतना ऐड करना चाहूंगा, एक नारी सब पर भारी। तो हमारे पास तो दो हैं, हमारे पास तो दो हैं, तो कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि वो भी सब पर भारी है। और मैं इसके साथ में छोटा सा ऐड करना चाहूंगा वसुंधरा जी आपको, कि राजस्थान एसोसिएशन यूके में, जैसे हरिंदर साहब ने पहले ही बताया, जो हमें बात बता रहे हैं कि इक्वलिटी की, हम लोगों ने पहले ही उस पर निर्णय ले लिया। और हमारे साथ आज हम अगर 15 युवक हैं तो 15 युवतियां भी हैं उसमें साथ में, और ज्यादा ही हैं। और जैसे हरिंदर साहब बताते हैं, मैं हमेशा, शिव में अगर ई निकाल दिया तो वो शव है, तो हमारे साथ स्त्रियां हमेशा शक्ति देने के लिए वहां हैं। तो हम आपकी स्त्री से शिव बने हैं। शब्दों में तो आप लोगों को कोई बीट ही नहीं कर सकता भैया। आपने आलोक जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू वसुंधरा, थैंक्स अ लॉट, इट वाज ग्रेट स्पीकिंग टू यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू कम, थैंक यू वसुंधरा जी मैडम। थैंक यू, Should we stop the live?